ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ افغان جریدے افغانستان انٹرنیشنل نے پاک فوج کی جانب سے افغان طالبان کی صرف فوجی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی۔ پاکستان نے اسپتال پر نہیں بلکہ اس سے 200 میٹر دور بمباری کی۔ افغانستان انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان نے پیر کی رات کابل میں اپنے حملے میں فتنہ الخوارج اور افغان طالبان کے ایک کیمپ کو نشانہ بنایا۔ طالبان نے حملوں کے بعد قریبی منشیات کے عادی افراد کے اسپتال کو آگ لگا دی۔ طالبان کا دعویٰ ہے اسپتال کو بم سے اڑایا گیا۔ شائع شدہ تصاویر میں اسپتال کا سائن بورڈ برقرار ہے اور عمارت جل رہی ہے۔ افغان طالبان کا دعویٰ ہے منشیات کے عادی افراد کے اسپتال پر حملے میں سینکڑوں افراد مارے گئے۔ 20 لاشوں کی تصاویر بھی جاری نہیں کی۔ افغان طالبان کی جانب سے پھیلائے گئے پروپیگنڈے کا پردہ چاک ہو گیا۔ اسپتال کے نام پر عسکری تربیتی کیمپ کا انکشاف۔ وزارت اطلاعات و نشریات کی جانب سے کیے گئے فیکٹ چیک کے مطابق جس امید اسپتال کو افغان طالبان کی جانب سے نشانہ بنائے جانے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ دراصل کیمپ فینکس سے کی گئی کلومیٹر دور واقع ہے۔ وزارت اطلاعات کے مطابق اصل ہدف ایک عسکری مقام تھا جہاں دہشت گردوں کے اسلحہ اور بارود کا ذخیرہ موجود تھا جسے گزشتہ رات درست نشانہ بنایا گیا۔ وزارت اطلاعات و نشریات نے ایک اور اہم فیکٹ چیک جاری کرتے ہوئے افغان سرحدی سوشل میڈیا ہینڈل سے ایک پوسٹ اور ویڈیو ڈیلیٹ کیے جانے پر گہرے شکوک اور شبہات کا اظہار کیا۔ مذکورہ آفیشیل اکاؤنٹ کی جانب سے سب سے پہلے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ کسی منشیات بحالی مرکز کو نشانہ بنایا گیا ہے، تاہم بعد میں اس متنازع پوسٹ کو اچانک ہی ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ آپ کو بتائیں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے منشیات کی بحالی اسپتال کو نشانہ بنانے کا الزام مسترد کر دیا۔ کہا افغان طالبان رجیم کا یہ دعویٰ سراسر بے بنیاد اور جھوٹ کا پلندہ ہے۔ پاکستان نے صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ 16 مارچ کی رات کابل اور ننگرہار میں ٹارگیٹڈ حملے کیے گئے۔ اہداف میں دہشت گردی کا بنیادی ڈھانچہ، گولہ بارود اور تکنیکی آلات ذخیرہ کرنے کی جگہیں اور پاکستان دشمن سرگرمیوں سے منسلک دیگر تنصیبات شامل تھیں۔ کوئی اسپتال، منشیات کی بحالی کا مرکز یا کسی شہری سہولت کی عمارت کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ افغان طالبان نے حالیہ ہلاکتوں کا الزام لگانے کے لیے پرانی تصویروں کا بھی استعمال کیا۔ ان کا مقصد غلط معلومات پھیلا کر عوام کو گمراہ کرنا ہے۔ حالیہ تصاویر مئی 2023 میں افغان وزارت داخلہ نے شیئر کی تھی۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ ایرانی میڈیا نے علی لاریجانی کو شہید کرنے کے اسرائیلی دعووں کی تردید کر دی ہے۔ ایرانی سرکاری میڈیا نے علی لاریجانی کے ہاتھ سے لکھا نوٹ جاری کر دیا۔ نوٹ میں علی لاریجانی نے ایرانی بحریہ کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ڈاکٹر علی لاریجانی نے کہا کہ ایرانی بحریہ کی قربانیاں عالمی طاقتوں کے خلاف جاری جدوجہد کو اہم حصہ ہیں۔ شہداء کی یاد ہمیشہ ایرانی قوم کے دلوں میں زندہ رہے گی۔ قربانیوں سے مسلح افواج کے ڈھانچے کو مزید مضبوطی ملے گی۔ قومی سلامتی کے سربراہ علی لاریجانی نے واضح کیا کہ ایران اپنی خود مختاری کے دفاع کے لیے ہر قیمت ادا کرے گا۔ اسرائیلی فوج نے ایرانی بسی فورس کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ کیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غلام رضا سلیمانی کو گزشتہ رات حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ تو دوسری جانب ایرانی سپریم لیڈر نے امریکہ کے ساتھ امن کی تجاویز کو مسترد کر دیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر مجتبی خامنئی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا فی الحال امن کا وقت نہیں ہے، اسرائیل اور امریکہ کو پہلے شکست دیں گے۔ مجتبی خامنئی نے کہا امریکہ کو ایران کے نقصانات کا ہرجانہ ادا کرنا ہوگا۔ ایران کو یہ تجاویز 2 ثالث ممالک کی جانب سے بھیجی گئی تھیں۔ ایران جنگ ٹرمپ کے لیے ڈراؤنا خواب بن گیا۔ اہم اتحادیوں کے بعد اہم سرکاری افسران بھی ساتھ چھوڑنے لگے۔ امریکہ کے ڈائریکٹر نیشنل ٹیررزم سینٹر ایران جنگ پر مستعفی ہو گئے۔ جو کینٹ نے کہا کہ سوچ بچار کے بعد میں نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایران سے جاری جنگ کی حمایت نہیں کر سکتا۔ ایران سے امریکہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ نے اسرائیل لابی کے دباؤ میں آ کر جنگ شروع کی۔ امریکی میڈیا اور اسرائیلی حکام نے غلط معلومات پھیلائی۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر نے کہا علاقائی سالمیت پائیدار ہونی چاہیے اور اسے باہر سے نافذ نہیں کیا جانا چاہیے۔ علاقائی ممالک کو پہلے ہی آگاہ کیا گیا تھا کہ خطے میں امریکی موجودگی سیکیورٹی کی ضمانت نہیں۔ انہوں نے کہا خطے کے اسلامی ممالک مل کر معاشی اور سیکیورٹی سطح پر نیا علاقائی نظام قائم کریں گے۔ دشمن ہم پر اپنا منصوبہ مسلط کرنے میں ناکام رہا جبکہ ہم نے جو منصوبہ بنایا تھا اس پر عمل کیا۔ ان کا مزید کہنا
कहना था कि अमरीकी अफवाज को मशरिक वस्ती से निकल जाना चाहिए। जहां जंगी हालात में किफायत शारी को जवाज बनाकर मुराद में कमी की जाती है, तो वहां जंग से शोरश ज़दा रियासत की तरफ से उजरत में इजाफे का ऐलान बड़ा कारनामा है। ईरानी हुकूमत ने कम अज कम उजरत में 60% से ज़ायद इजाफे का ऐलान कर दिया है। ईरानी खबर रसा इदारे के मुताबिक मुल्क के वज़ीर मेहनत ने ऐलान किया है कि हुकूमत ने कम अज़ कम उजरत में 60% से ज़ायद इजाफे की मंजूरी दे दी है, जबकि आइंदा ईरानी साल के आगाज़ से माहाना कम अज़ कम तनख्वाह 103 मिलियन रियाल से बढ़ाकर 166 मिलियन रियाल कर दी जाएगी, जबकि बच्चों के अलाउंस में भी उसी तनासब से इजाफा किया जाएगा। आइंदा ईरानी साल के आगाज़ से माहाना कम अज़ कम तनख्वाह 103 मिलियन रियाल से बढ़ाकर 166 मिलियन रियाल कर दी जाएगी। आपको बताएं, मुल्क की पेट्रोलियम दरामदात की सप्लाई चेन बेहतर बनाने के लिए वज़ीर पेट्रोलियम मजीद मुतहर्रिक हो गए हैं। हालात की बेहतरी तक तमाम मुतालिका इदारे हंगामी इक़दाम के लिए तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ईंधन की बचत और किफ़ायत शारी इक़दाम का तफसीली जायज़ा लिया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत का ज़रूरियात के मुताबिक मुनासिब ज़ख़ीरा मौजूद है। सूरत हाल की मुसलसल निगरानी जारी है। पेट्रोलियम मसनूआत का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान ज़रई तहक़ीक़ाती काउंसिल की तंजीम 9 की उसूली मंजूरी दे दी। टाइम लाइन के साथ PARC की तंजीम 9 पर जामिया प्लान तैयार करने की हिदायत कर दी। कहा PIRC को चीन के अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज के तर्ज पर ज़रई तहक़ीक़ के हवाले से आला तहक़ीक़ाती इदारा बनाया जाए। ज़रई तहक़ीक़ का मुल्क के ज़राअत और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे की फ़रोग़ में कलीदी किरदार होगा। खबर यह है कि हमारे पास पेट्रोलियम मसनूआत का 28 दिन का स्टॉक मौजूद था। इस 28 दिन के स्टॉक पर भी 55 रुपये बढ़ा दिए गए। हुकूमत सारा मलबा हमेशा अवाम पर डालती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की हुकूमत पर कड़ी तनक़ीद। लाहौर में जमात इस्लामी विमेन विंग की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, सबसे पहले मरियम नवाज का 11 अरब रुपए का जहाज़ बेचा जाए। हुक्मरान अपनी अयाशियां ख़त्म करें। मरियम नवाज का जहाज़ बेचा जाए। अमीर जमात इस्लामी ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की तनख्वाहें और मराद कम करने का भी मुतालबा कर दिया। हमारा स्टॉक मौजूद था, वो तो 28 दिन का मौजूद था ना, तो वो 28 दिन के स्टॉक पे भी उन्होंने 55 रुपये बढ़ा दिए थे। बात ये है कि ये तो सारा मलबा हम पे डालते हैं। सबसे पहला काम ये करें कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का जहाज़ बेचें 11 अरब रुपए का, और 9 करोड़ की गाड़ी जो अभी ताज़ा आई है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन सेनेट की, वो बेचें। सब लोग 1300 सीसी पे आ जाएं और अपनी अय्याशियाँ ख़त्म करें। तनख्वाहें अपनी जो बढ़ाई थी इन लोगों ने, MNAs, MPAs, सेनेट और कौमी असम्बली ने, वो तनख्वाहें वापस उसी जगह पर लेकर जाएं। उससे पता चलेगा कि ये सीरियस हैं। अब इन्होंने जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, इसमें 20 रुपये लेवी के बढ़ा दिए हैं। जो पूरे महीने में 40-50 हज़ार रुपये कमाता है, वो 10 हज़ार रुपये गवर्नमेंट को टैक्स देता है, और ये बड़े बड़े जागीरदार टैक्स नहीं देते। IPPs के हराम के पैसे खा रहे हैं कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर, और हमारे बच्चों के ऊपर जो है बोझ डाल रहे हैं। ये नहीं चल सकता निज़ाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ है। मनी लॉन्ड्रिंग और हुंडी माफिया के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन का फैसला किया गया। इजलास में वाज़ेह किया गया कि गैर कानूनी ज़राए से बैरून मुल्क रकूम भिजवाने वाले बड़े कारोबारी अफराद और इदारों के खिलाफ शिकंजा सख्त किया जाएगा और किसी के साथ रियायत नहीं बरती जाएगी। इजलास में फैसला किया गया कि रकूम सिर्फ बैंकिंग और दीगर कानूनी चैनल्स के जरिए बैरून मुल्क भेजी जा सकेंगी। मनी चैलेंजेस के जरिए रकूम भिजवाने के अमल को शफाफ और फुल प्रूफ बनाया जाएगा, जबकि गैर कानूनी ज़राए के मुताबिक तमाम चैनल्स पर हर सतह पर हौसला शिकनी की जाएगी। वफाकी वज़रा ने कहा कि बड़े मनी लॉन्ड्रर्स पर मजबूत हाथ डाला जाएगा और हुंडी का कारोबार किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैरपुर की तहसील गुम्बट में कायम पीर अब्दुल कदीर शाह जिलानी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मुल्क का मुनफरिद तिब्बी इदारा बन गया, जहां जदीद इलाज की सहूलियात बिला मुआवजा फराहम की जा रही हैं, जिसके बायस मरीज बैरून मुल्क जाने के बजाय इसी अस्पताल का रुख कर रहे हैं। गेम्स अस्पताल में किडनी, लिवर, अमराज क़ल्ब, फॉलिज समेत मुख्तलिफ शोबाजात के साथ जदीद एडवांस्ड बर्न सेंटर भी कायम है, जो 24 घंटे मुफ्त खदमात फराहम कर रहा है और जलने वाले मरीजों के इलाज, देखभाल और बहाली के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। डायरेक्टर डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी के मुताबिक अस्पताल में प्लास्टिक सर्जरी, स्किन ग्राफ्टिंग, जदीद ऑपरेशन थिएटर्स, लेबॉर्ट्रीज, एम्बुलेंस और फिजियोथेरेपी समेत तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं, जबकि मुल्क भर से हज़ारों
हजारों मरीज यहाँ इलाज के लिए आ रहे हैं। मरीजों का कहना है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इलाज ना मिलने के बाद गेम्स अस्पताल में मुकम्मल और मयारी सहूलियात मैसर आ रही हैं, जो उनके लिए किसी नेमत से कम नहीं। आपको बताएं, रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म होने और ईद उल फितर की आमद है। 3 दिन बाकी रह गए। मुल्क भर के तमाम छोटे बड़े शहरों में बाज़ारों और मार्केटों की रौनकें दोबाला हो गईं। दिल की ईद की ख़रीदारी के लिए शहरियों ने शॉपिंग सेंटर्स का रुख कर लिया। मज़ीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। सर पर आ गई, वक्त कम और मुकाबला सख्त। छोटे हो या बड़े, खवातीन हो या बच्चे, सबके जहनों पर खरीदारी का भूत सवार। अपनी मनपसंद चीजों की खरीदारी के लिए शहरियों ने बाजारों का रुख कर लिया। बाजारों में रंग बरंगे मलबूसात की बहार। शहरी फैमिलीज के हमरा ईद की शॉपिंग में मसरूफ हैं। मलबूसात, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक्स और चूड़ियों के स्टॉल्स पर खवातीन का रश लग गया। खवातीन की जानिब से चूड़ियों और कपड़ों की खरीदारी जारी, जहां नित नए डिजाइन्स और कश्मीरी चूड़ियां फरोख्त के लिए पेश की जा रही हैं। इसके अलावा बच्चों के मलबूसात, जूतों और चूड़ियों की दुकानों पर गहमा गहमी उरूज पर है। खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों का कहना है कि ईद की शॉपिंग का सिलसिला चांद रात तक जारी रहेगा। महंगाई के बावजूद ईद की खुशियां मनाने के लिए पुरजोश हैं। ईद करीब आ रही है, लोग खरीदारी कर रहे हैं अपने अपने घरों के लिए, बहुत सारी चीजें खरीद रही हैं, बच्चों के लिए शॉपिंग कर रहे हैं। मैं भी आई हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबको ऐसी खुशियां नसीब करे। दफ़ा जो है ट्रेंडिंग में जो टिकटॉक पर चल रही है कश्मीरी चूड़ी है, जो कि हम काफ़ी कस्टमर हमारे पास आते हैं, कस्टमर डिमांड है और हमारे पास कश्मीरी ज्वेलरी में भी काफ़ी स्टॉक है और इस दफ़ा ईद का रश भी बहुत है भाई। शहरियों का कहना है कि कोशिश करते हैं कि कम बजट में भी बच्चों और घर वालों के लिए कुछ ना कुछ जरूर खरीदें। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से खिदमत की। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।